Yes, so can you please confirm? Am I audible properly and my screen is also visible? You can type V for visible in the chat box. All right. So first of all, before we start with the session, अभी तक हमारे जितने भी sessions हुए हैं, so initially we discussed the different components of our computer system. Then we started to learn the language. So we discussed the tokens, variables, identifiers, all those concepts. Then we started writing some basic programs in Python. फिर उसमें जो different operators होते हैं वो हमने detail में study किया. So all these concepts we have covered. यहाँ तक सबको समझ में आया है? तो यू फॉर अंडरस्टूड टाइप करो चैट बॉक्स में. अभी तक जितने सेशंस हो गए हैं और इन सभी सेशंस की रिकॉर्डिंग आपको आपके आपके ग्रुप में अवेलेबल है. फ्री ग्रुप्स जितने भी है सब में वो उसके सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है. तो जिसने भी एक आध सेशन मिस किया है सो दे शुड गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स. All right, so I see a confirmation from Prachi, Vaibhav, Vallabh, Sakshi. Yes, so everybody has understood. Fair enough. तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग. So first of all, what I would like to do is we studied the concept of operators. We did a couple of programs. तो थोड़ा सा वो operators वाला ही part है, उसमें से कुछ चीजें बतानी है मुझे. So let me just have a new folder for today's session. So we had seen about the operators. So let's say I have base arithmetic operator. So let's say we are asking the user to input the first number. Enter the second number and the result. So result is plus minus, तो वो तो simple है, वो आपको पता ही है. Now let me just write the result. Suppose I enter 34 and the second number. So this is the summation, which is fine. Minus भी simple है, ये दोनों number को हमने subtract किया. So this is subtraction. Now multiplication is also simple, that we are going to do the multiplication. So multiplication. अभी मेन मुझे ये बताना था कि सिंपल डिवीजन अगर आप करते हो, दैट इज अ नॉर्मल डिवीजन. So 34, 22. So you get the answer in point. तो ये आपका फ्रैक्शन में वैल्यू आ रहा है. अगर हमने इसको डबल स्लैश दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोर डिवीजन. सो फ्लोर डिवीजन में क्या होगा? 34, 22. So you can see the result will come up as an integer. Fine. और फिर ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर, raised to the power. So 3 to the power 4 is 81. Right? और फिर एक मॉड ऑपरेटर है. So mod operator में जैसे 10 और 3. So remainder is 1. So this is about the arithmetic operators. So I want you all to आपस में आप खुद ही प्रैक्टिस कर लो एक बार. अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि यदि ये ऑपरेटर्स एक साथ बहुत सारे आ जाए, फॉर एग्जाम्पल
let's say 3 multiplied by 4 plus 4 divided by 2 multiplied by 4. So print result. So everyone please try and tell me what should be the answer of this question. I have written some expression in front of you. So please try to solve this. और फिर मुझे बताओ आंसर क्या आना चाहिए. इसको मैं फ्लोर डिवीजन लिखती हूँ just to avoid the points and everything. Yes, come on everyone. अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर तो सिंपल था, हमें पता चल गया हर एक ऑपरेटर, बट अगर ये ऑपरेटर बहुत सारे एक्सप्रेशन एक साथ आ गए तब कैसे हम उसको डील करेंगे, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. यस कम ऑन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द आंसर? ट्वेंटी. सो वल्लभ इज सेइंग द आंसर शुड बी 20. देखो इसके मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं. यहाँ पे आपको ये तो पता ही है कि 3 into 4. 3 into 4 is 12, राइट. प्लस अभी ये 4 डिवाइडेड बाई 2, अगर हमने ये पहले सॉल्व किया तो आंसर 2 आएगा. 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो ये 8 होगा. सो आंसर शुड बी 20. दैट इज वन ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4. यदि ये पहले सॉल्व हो गया तो ये कितना हो जाएगा 8. सो 4 डिवाइडेड बाय 8, एक्चुअली दिस विल बिकम 0 बेस्ड ऑन द इंटीजर डिवीजन. तो उस केस में यहाँ पे आंसर कितना आएगा 12. तो या तो 20 या तो 12, ये दो ऑप्शंस हैं हमारे पास. डू यू एग्री विथ मी? सो लेट मी चेक दिस आउट. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द आंसर इज 20. तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? If so, there is one concept when we deal with the operators. एक concept होता है that is called as the precedence and associativity of operators. अगर एक साथ बहुत सारे ऑपरेटर्स हो जाते हैं एक साथ तो उनका एक प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी होता है. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए तो सिंपल है बॉडमास रूल. सो बी फॉर ब्रैकेट, पता है क्या आपको? बी फॉर ब्रैकेट. ओ फॉर ऑफ. ऑफ मतलब यूजुअली वो क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर के लिए होता है, शायद वो पावर के लिए होता है. ऑर्डर मतलब पावर. फिर डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो दैट इज द सीक्वेंस. तो ब्रैकेट रहेगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी ब्रैकेट को मिलेगा. फिर दूसरा प्रायोरिटी अगर पावर है x टू द पावर y, फिर तीसरा प्रायोरिटी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को होता है और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन को. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स द ऑपरेटर्स विल बी इवेलुएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ये डायरेक्शन ऐसे इवेलुएट होते हैं. तो ये वाला अभी आपने देखा, ये पहले सॉल्व हुआ फिर ये सॉल्व हुआ. इज दैट क्लियर एवरीवन? So there sometimes some questions might be asked in MCQ. तो ऑप्शन ए बी सी, तो अगर सॉल्व करना रहेगा तो ये पैटर्न फॉलो करना है. तो ये समझ में आया है कि आपको? इफ यस प्लीज टाइप यू फॉर अंडरस्टूड इन द चैट बॉक्स. सो लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन. तो ये तो समझ में आया है. सो लेट्स से आई टाइप योर रिजल्ट इज इक्वल टू
2 to the power 3 multiplied by 4. तो 2 to the power 3 कितना होता है? 8 होता है. 8 4s are 32. हाँ, तो मतलब ये क्या सॉल्व हुआ? पहले एक्सपोनेंट वाला पहले सॉल्व होगा और पावर वाला सेकेंड टाइम पे सॉल्व होगा. तो आंसर विल बी 32. इज दैट क्लियर एवरीवन? अब तुम चाहते हो कि नहीं मेरे को सीक्वेंस चेंज करना है, तो आप इसको ब्रैकेट में डाल दो. सो व्हाट आर वी सेइंग? 3 to the power 4 should be solved first. So 3 into 4 is 12. So this becomes 2 to the power 12. So 2 to the power 12 is a bigger number. Understood everyone? तो अभी ये प्रेसिडेंस और प्रायोरिटी ये समझ में आया ऑपरेटर्स का, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में. ओके, सो दिस वाज अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेटर. तो ये थोड़ा सा इसके साथ यू जस्ट प्ले अराउंड, खुद से ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस लिखो और देखो कि क्या आउटपुट आ रहा है, ये सही आ रहा है गलत आ रहा है. सो यू मे प्ले विथ इट. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट वन. डेमो 3. तो अरिथमेटिक के बाद नेक्स्ट हमने कौन सा देखा था? असाइनमेंट ऑपरेटर. सो x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20. So here what is happening? 10 is being assigned to x, y is being assigned the value that is 20. अब उस पे अब इस पे अपने को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सो सपोज आई एम राइटिंग z इज इक्वल टू x प्लस वाई. सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से? पहले x और y को ऐड करो और फिर z में स्टोर करो. नाउ अभी आप देखो, या फिर चलो यहीं से शुरुआत करते हैं. सपोज मैंने कुछ ऐसा लिखा है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग इन पाइथन. ये सिर्फ पाइथन में ऐसा होता है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग तरीके से ट्रीट होता है. सो आई वांट यू टू focus here, and this is something very interesting and very important concept that I'm going to teach you. So I'm going to introduce a concept called as a memory diagram. जितना आप प्रोग्राम लिखते समय मेमोरी डायग्राम बनाते जाओगे, उतना प्रोग्राम का क्लैरिटी आपको बहुत ज्यादा आते जाएगा. ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू हैव दिस memory diagram. So what is my memory diagram? I will just explain in a couple of minutes. मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि हम अपने प्रोग्राम का पूरा डाइसेक्शन कर रहे हैं. जैसे डॉक्टर्स लोग ऑपरेशन करते हैं तो चीर फाड़ करते हैं ना, समथिंग लाइक दैट. सो हमारा प्रोग्राम जब रन होता है तो अंदर कंप्यूटर के क्या हो रहा है, रैम पे क्या हो रहा है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. तो ये जो रैम में हमारा प्रोग्राम होता है, दिस इज द पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस. Okay, so this part that you see here, that is called as the code segment. Okay, यहाँ पे ये जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं ग्लोबल एंड स्टैटिक सेक्शन. देन दिस एरिया इज द हीप एरिया और इसको हम कहते हैं स्टैक. So this is how the categorize. I request you all to please quickly draw this diagram. और एज अ होमवर्क इसको 2 से 3 बार आप ड्रॉ करो. 2 से 3 बार बस हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आप ड्रॉ करके रखो. Whenever program starts executing, the program has a code segment. और फिर ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा, इसे हम कहते हैं डेटा सेगमेंट. ओके, तो जो कोड सेगमेंट होता है, हम अपने प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जो अपने प्रोग्राम का सारा इंस्ट्रक्शंस होगा, दैट गोज इनसाइड द कोड सेगमेंट. ठीक है, फिर जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारा कोड कंपाइल होगा, फिर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा. सो सीपीयू स्टार्ट्स पिकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दीज लाइंस.
जैसे वो एग्जीक्यूट करना शुरू होगा, हमने अपने प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, तो वो मेमोरी एलोकेशन इस डेटा सेगमेंट में होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? अब जैसे एक प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम में लिखा x इज इक्वल टू 10, y is equal to 20 and z is equal to x plus y. Suppose this is the program, simple program I have written. So what happens in Python? Python में ये जो stack आपको दिख रहा है, so in a stack one memory block is created. Okay, ये जो 10 है ये एक्चुअली स्टोर होता है हीप पे। सो अ मेमोरी ब्लॉक इज क्रिएटेड ऑन द हीप जिसमें 10 क्रिएट होगा, उसका कुछ तो एड्रेस होगा, लेट्स से 100, दैट 100 गोज टू x. सो दिस इज हाउ द मेमोरी एलोकेशन हैपेंस। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल है y जिसकी वैल्यू है 20। सो y और यहाँ पे 20 एक अलग मेमोरी ब्लॉक पे बनेगा और उसका एड्रेस y के पास रहेगा। So you can just understand that y, x और y क्या है? They are considered as a reference. या आप सिंपल वर्ड्स में उसको बोलो एड्रेस, या फिर आप अगर सी प्रोग्रामिंग वगैरह बैकग्राउंड से है तो आपको वर्ड समझ में आएगा पॉइंटर। सो x and y they are like pointers or they hold the addresses of the actual values 10 and 20. तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई? 10 और 20, उसका जो एड्रेस है वो x और y के पास रहता है। सो इन पाइथन every time the values will be stored on the heap. Data is never stored on stack. Please can you note this point everyone? Because this is now a big difference between C, C++ and Python. C, C++ वगैरह में हमेशा डेटा जो है वो स्टैक पे स्टोर होता है, बट नॉट इन पाइथन। So I request you to please make a note of this diagram also. ये पूरा नोट करो अच्छी तरह से, ये अपना अभी बेस बनना शुरू हो रहा है, ठीक है? Then you might also think कि ये प्रूव कैसे करेंगे, so please hold on for a second, I will prove this also. जब आपका हो जाएगा तो डी फॉर डन लिखोगे चैट बॉक्स में। I can see D for done coming up from Pranav and Prachi and Sakshi also. So many people are now done. अब आते हैं Z के ऊपर। तो Z कैसा होगा? So Z is another memory block. तो Z के पास एड्रेस आ गया 300 और 10 और 20 का जो समेशन होगा वो कितना है? समझो यहाँ पर है 30. So it will be over here. तो इसका एड्रेस है like this. So this is how the memory allocation is done in Python. ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? So as I told you, I will also prove this. ये कैसे होता है? तो यहाँ पर हमने लिखा z is equal to x plus y. So when you just print x and y, वो क्या करता है? वो एड्रेस के थ्रू वैल्यू को फेच करता है और हमें दिखा देता है। तो अभी मुझे देखना है कि नहीं x के पास जो एड्रेस है वो कितना है। So for that we use the id method for x. Similarly, I will use id method for y and id method for z. एंड यहाँ पे एक कॉमा देके x, comma y, and this is comma z. So what is going to be the output? id x will tell us the address which is present in x. id y will give us the address which is present in y and so on. और x, y, z उसकी corresponding values है. So now if I go ahead and execute this. So can you see this everyone? आपको ये एड्रेस दिखाई दे रहा है और उसके साथ उसकी वैल्यू भी। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है तो C for clear टाइप करो। All these variables have different addresses which are present और उसके पास ये values हैं वो भी दिखा रहा है।
Okay. Now I am going to tell you something really interesting. Once repetition. Okay. See. कौन है? प्राची। प्राची पहले तो ये बताओ बेटा, ये डायग्राम समझ में आया आपको? x इज इक्वल टू 10 लिखा, तो यहाँ पे x और यहाँ पे 10, मतलब एक्चुअल डेटा जो है हीप पे स्टोर होता है, उसका जो एड्रेस है वो x के पास, y के पास उसका एड्रेस, z के पास उसका एड्रेस, ऐसे रहता है। पर ये मैं देखूंगी कैसे? हाउ डू आई व्यू दिस इन द प्रोग्राम? सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज द id मेथड, id ऑफ x। तो ये हटा देती हूँ मैं, अभी ये सब हटा देती हूँ। अभी यहाँ पे देखो, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, z इज इक्वल टू x प्लस y। तो अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखो, प्रिंट id ऑफ x। सो दिस इज गोइंग टू प्रिंट, दिस विल प्रिंट द एड्रेस इन x। x के पास जो एड्रेस है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। इज दैट क्लियर नाउ? तो मैंने क्या किया, x में जो एड्रेस है वो प्रिंट किया, और साथ में कॉमा x, तो x के पास कौन सी वैल्यू है वो भी हम प्रिंट कर रहे हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस। इज दैट क्लियर? ओके, तो वैसा ही हमने क्या किया, सेम टू सेम y और z के लिए भी कर दिया। तो इधर आ गया y और इधर आ गया z। id इज द आइडेंटिफायर ऐसे बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज, इट रिप्रेजेंट्स द एड्रेस एट विच दैट एलिमेंट इज स्टोर्ड। अंडरस्टूड? ये यूनिक आईडी बोलो या उस लोकेशन का एड्रेस आप बोल सकते हो जहां पे वो एलिमेंट स्टोर्ड है। ऑलराइट, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। तो अभी पहले मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। समझो, यहाँ पे मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10. Suppose I am writing this, and now I ask you to create the memory diagram for this. So the memory diagram principle, now you know कि यहाँ पर, yes. So can you tell me step by step what should I do? ये तो कोड सेगमेंट है, यहाँ पे सारा कोड होगा। दिस इज ग्लोबल एंड स्टैटिक सेक्शन, ये अभी हम नहीं, बाद में टच करेंगे। दिस इज अवर हीप एरिया एंड दिस इज अवर स्टैक। यस, सो टेल मी, x इज इक्वल टू 10 के लिए डायग्राम में सबसे पहले क्या ड्रॉ करूं? कम ऑन, स्टैक में x बनेगा, करेक्ट? तो x बनेगा, और उसका जो वैल्यू है 10 यहाँ पे रहेगा। सो लेट्स से इट्स एड्रेस इज 100, तो यहाँ पे 100 आएगा। यस और नो एवरीवन? यस। अभी नेक्स्ट आता है y इज इक्वल टू 10, तो अब क्या करना है? y की वैल्यू, तो y के पास समझो 200 है, 200 पे it will be something like this. Yes or no everyone? So Preeti is saying no, others are saying yes. Others, Vaibhav, Vallabh, can you please check which is it correct or not? तो प्रीति क्या करेक्शन करना है इधर, अगर तुम नो बोल रहे हो तो? मैम मुझे समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। तो ये पहले वाला भी समझ नहीं आया क्या प्रीति? दिस पार्ट ऑल्सो इज नॉट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? एन यू टाइप करो, नॉट अंडरस्टूड का एन यू टाइप करो। ओके, सो प्रीति को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो पहले मैं प्रीति का डाउट क्लियर करती हूँ। सेम एड्रेस शुड बी रिटन। ओके, एक मिनट, हाँ मैं जरा ये
प्रीति का डाउट थोड़ा सा सॉल्व करती हूँ। ओके सब प्रीति, तो यहाँ ध्यान दो, समझो ये अपना मेमोरी वेरिएबल्स हैं। एज आई टोल्ड यू कि अपना जब भी मेमोरी डायग्राम मतलब तो समझ में आ रहा है सबको। When our program starts running, I told you right, our program will be present on the RAM. हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रैम में अपना प्रोग्राम होगा, तो रैम में मेमोरी एलोकेशन उसको कैसे मिलेगा, ये वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस पार्ट इज ओके प्रीति, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, कोड सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। एंड दिस एंटायर पार्ट इज द डेटा सेगमेंट। सो अवर एंटायर डिस्कशन इज ऑन द डेटा सेगमेंट। तो ये जो वेरिएबल है एक्स, तो पाइथन में क्या होगा, एक्स जो बनेगा वो स्टैक पे बनेगा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमेशा हीप पे बनती है। तो ये जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ, इसका कुछ तो एड्रेस रहेगा 100 और वो 100 आएगा एक्स के पास। सिमिलरली वाई के लिए मेमोरी ब्लॉक है में है 20, इसका एड्रेस है लाइक दिस, इट इज क्रिएटेड। नाउ प्रीति कैन यू प्लीज टेल मी, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ये ऐसा होता है पाइथन में। बाकी सब जगह पे क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे x में 10, y में 20 ऐसा होता है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, बट नॉट इन पाइथन। पाइथन में इस तरीके से मेमोरी एलोकेशन होता है। ओके, सो आई वाज डिस्कसिंग अनदर पॉइंट कि अगर x की वैल्यू भी 10 है, y की वैल्यू भी 10 है, सेम है, तो पाइथन को आप हमेशा एक ऐसे याद रखो, कंजूस मक्खी चूस। ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, so for this variable the new memory block is not being created, ऐसा यहाँ पे memory block create नहीं होता है। so what is going to happen, ये जो memory block है उसका एड्रेस है 10, तो y के पास भी 100 आ जाता है। so both are pointing to the same memory block. so python tries to reserve the memory as much as possible. वो बोलता है वेस्टेज नहीं करना है, अगर तुमको भी 10 चाहिए, तुमको भी 10 चाहिए, तो दो अलग अलग मेमोरी ब्लॉक क्यों, तुम लोग सेम ही मेमोरी ब्लॉक यूज करो ना। सो बोथ आर गोइंग टू रेफर टू द सेम मेमोरी ब्लॉक। एवरीबडी गॉट दिस पॉइंट? कैन यू प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट एवरीबडी? पाइथन विल ट्राई टू अवॉइड क्रिएटिंग द न्यू मेमोरी ब्लॉक, सभी लोग वही मेमोरी ब्लॉक को रेफर करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, यही वाला जो अपना प्रोग्राम था, अगर मैं सबको 10 लिख दूं, let me change all these three variables to have the value as 10, and now you observe the output. Can you see this everyone? Okay, got it everyone? This part is clear? Okay, now आगे जाकर अगर हम वैल्यू को बदल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट x प्लस इज इक्वल टू 10, सो आई मॉडिफाइड द वैल्यू। सो व्हाट डज दिस मीन, x प्लस इज इक्वल टू 10 का मतलब आपको क्या समझ में आता है बताओ? दिस मीन्स x इज इक्वल टू x प्लस 10, yes और no? तो अब इसके बाद क्या होगा,
सो इफ आई कम बैक टू द मेमोरी डायग्राम, तो जैसे ही तुमने x प्लस इक्वल्स टू 10 लिखा, तो x की वैल्यू बदल गई। तो जैसे x की वैल्यू बदल गई, तो x के लिए मेमोरी ब्लॉक अलग बन जाएगा। तो उसका मान लीजिए 20 है, तो ये पॉइंटर अभी यहाँ चला जाएगा और दिस विल बी 200। इज दैट फाइन? समझ में आया सबको? सो लेट मी शो यू ऑल्सो। तो अभी ये चेंज किया हमने x को, और फिर से हम XYZ का एड्रेस देखते हैं। तो प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ तक तो सेम था वैल्यू, बाद में देखो x की वैल्यू चेंज हो गई, तो उसका एड्रेस भी दिख रहा है आपको। पहले 2552 था, अभी 2872 कुछ दिखा रहा है, राइट? बाकी ये y और z ऐसे ही रहेंगे। अभी क्लियर है सबको? Okay, so this was about the memory allocation that happens in Python, right? अब assignment operator तो clear है आपको? Next, let's move ahead. The next set of operator that we had discussed was the relational operator, greater than, less than. तो अभी देखो, 10 greater than 5. What do you understand? या फिर मैं यहाँ पे z is equal to ऐसे लिखती हूँ। So is 10 greater than 5? Yes or no? Yes. तो आंसर क्या आएगा? Answer is true. Perfect. So you can see the answer is true. अब उसी को अगर हम चेंज कर देते हैं तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। सो हियर द आंसर इज फॉल्स। और इसी में डबल इक्वल टू भी हमने देखा था, तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं, तो ये फॉल्स आएगा। और नॉट इक्वल टू में आंसर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैंने लिखा 10 ग्रेटर देन 5 लाइक दिस, देन व्हाट इज द आंसर? तो अब ये क्या होता है, ये इस ऐसा, मतलब क्या बोलते हैं आप, लेफ्ट टू राइट इवेलुएट होता है। सो पहले लेफ्ट टू राइट देखो, आंसर क्या आएगा? अच्छा, एक और चीज बिफोर आई प्रोसीड विद दिस, whenever we are talking about conditions and all those things, please remember one important point, ये नोट डाउन करोगे। जीरो मतलब होता है फॉल्स, जीरो इज फॉल्स। अदर देन जीरो एनीथिंग इज ट्रू, मतलब 1 भी ट्रू है, -143 is also true, any other number is also true. समझिए? Anything other than 0 is true. Can you please note down this point, everybody? 0 is false, anything other than 0 is true.
ओके, सो नाउ कमिंग बैक, तो अभी यहाँ पे देखो 10 इज लेस देन 5, क्या आएगा आंसर? फॉल्स आएगा। तो फॉल्स मतलब क्या? जीरो। सो जीरो इज ग्रेटर देन 1, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो अब इस इक्वेशन का आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। समझे? अब इसको जरा सा मैं साइन को चेंज करती हूँ, ये देखो। So this part will evaluate to false, that is 0. 0 is less than 1. Yes. So can you see this? Output will become, अरे फिर से false आया, या फिर ये उल्टा है क्या? एक मिनट। So this will evaluate to false. False मतलब 0. एक मिनट, इसको जरा मैं चेंज करके रखता हूँ। So this is true. ये true आया. This is false. ये कौन सा सीक्वेंस में हो रहा है देखना पड़ेगा, एक मिनट। या तो इसको एक बार ब्रैकेट लगा के टेस्ट कर सकते हैं। कंफ्यूजन है ना? सो लेट्स रिजॉल्व द कंफ्यूजन बाय यूजिंग ब्रैकेट। सो 10 greater than 5 is coming up as true. So true is less, true means 1 है suppose. So 1 is less than 1, that is no. So it is, answer is false. Correct, इसमें false आया। अब इसको अगर हम चेंज करते हैं तो ये भी false आएगा, करेक्ट है। और इसको अगर हम इक्वल रखते हैं तो आंसर ट्रू आ रहा है, करेक्ट। ठीक है क्या, अभी समझ में आया? अभी इसको हटा के चेक करते हैं। अभी फॉल्स आया, मतलब ये पहले सॉल्व होगा तो ये फॉल्स आएगा। फिर फॉल्स क्यों आ रहा है आंसर? ये थोड़ा मेरे को चेक करना पड़ेगा, हाँ, कौन से सीक्वेंस में हो रहा है। आई विल क्रॉस चेक ऑन दिस, तुम भी चेक करो थोड़ा ऐसे, दो चार चीजें कर करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा वाला पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? मैं भी चेक करती हूँ, आप भी चेक करो, ठीक है। बट द पॉइंट आई वांटेड टू मेक इज, अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हुए तो वो कैसे इवेलुएट होता है वो देखना चाहिए। तो ये वाला चीज तो फॉल्स आएगा, या फिर ये अगर पहले सॉल्व हुआ तो ट्रू, यानी कि 1, 1 इक्वल टू 1 में ट्रू आना चाहिए था, और इस केस में फॉल्स है तो 0 तो भी ट्रू आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आंसर फॉल्स आ रहा है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट बिट कंफ्यूज्ड। लेट मी क्रॉस चेक, हाँ ये कैसे इवैल्यूएटेड, एक बार और चेक करते हैं। इसको साइड में रखो, कल एक बार और इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो फॉर डेमो 5। नाउ we had discussed about the conditional, the logical operators. If you remember, हमने and और ऑपरेटर पढ़े थे, याद है? तो and में क्या होता है? What happens in and? If both the conditions are true, then the result is true. और में क्या होगा? If both the conditions are false, then the result is false. तो समझो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है और z की वैल्यू 30 है, एंड देन आई एम सेइंग रिजल्ट इज इक्वल टू x greater than y and y greater than z. Suppose this is the condition I am giving you. So can you predict what is the answer in this case? False. False कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हमने, 20 greater than y, that is false. अगर वो false है तो and है, तो एक भी false हो गया तो रिजल्ट false ही आना है. So here we will go for, so the answer comes out to be false.
अब इसको ट्रू वाला केस ले लेते हैं, यहाँ पे ये ट्रू आ गया। सो x इज लेस देन y, यस, तो ये ट्रू आएगा। और y इज ग्रेटर देन z, ये फॉल्स है, तो इस केस में भी आंसर फॉल्स ही आएगा, एक भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। सो हियर लेट मी चेंज दिस टू दिस वन। सो अगेन द आंसर बिकम्स ट्रू। ठीक है, एंड ऑपरेटर, ये पार्ट तो सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इसी को हम और में भी देख सकते हैं। और है तो दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, और ये तो सिंपल है, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं है। एम आई करेक्ट? दिस पार्ट इज इजी, सो नो प्रॉब्लम विद दिस। ओके, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। Z and sorry, have you seen this type of expression, anybody? X and Y. X का वैल्यू कितना है? 10 and 20. So what is the point? X की वैल्यू जो भी हो, पर मैंने आपको क्या बताया, अगर अगर X की वैल्यू 0 होती है देन इट इज कंसिडर्ड टू बी फॉल्स। 0 के अलावा कुछ भी है तो वो ट्रू है। ये समझ में आ रहा है आपको? So this is a kind of new type of expression for you, yes or no? ये पहले देखा है क्या आपने, x and y ऐसा? या मैं 5 and 30 ऐसा भी लिख सकती हूँ, right? So Vallabh is saying he has seen that, so that is good point. Others? Okay, so what is happening in this case? X की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 20. Now, what is the principle of AND? यदि पहला कंडीशन ट्रू है तो दूसरा कंडीशन हम चेक करेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो 20 भी ट्रू है, तो क्योंकि हम, लेट मी राइट इट हियर, x की वैल्यू हमने 10 ली है और y की वैल्यू हमने 20 लिया है, एंड देन वी आर राइटिंग सपोज z इज इक्वल टू x एंड y. सो x की वैल्यू 10 है, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू। समझो ये ट्रू है और मुझे ये वाला अभी तक पता नहीं है और एंड ऑपरेटर है, सो कैन आई टेक अ डिसीजन वेदर द रिजल्ट विल बी ट्रू और फॉल्स? अगर एंड है, एंड की कंडीशन है, तो पहला वाला मुझे ट्रू पता है, दूसरा वाला मुझे पता नहीं है, ये पता नहीं है। सो कैन आई टेक अ डिसीजन अबाउट द रिजल्ट, ट्रू आएगा आंसर की फॉल्स आएगा, ये पता है क्या? नो no. तो दूसरा वाला देखना ही पड़ेगा। तो दूसरा वाला मैंने क्या देखा, 20, 20 इज ऑल्सो ट्रू, सो फाइनल रिजल्ट विल बी ट्रू। बट क्योंकि हम 20 तक गए और यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर है, सो दिस वैल्यू इज असाइन टू z. सो z की आउटपुट वैल्यू अगर आप देखोगे तो आंसर आएगा 20. अंडरस्टूड? बिकॉज वी रीच देयर, और वही वैल्यू फाइनल वैल्यू है और वो किसको स्टोर हो जाएगी, z को। तो अब अगर आप आउटपुट देखोगे तो आउटपुट में आपको आएगा z, सॉरी क्या नाम है, 20, सॉरी 6 करना था मुझे। So can you see this everyone? The answer is 20. Now let me make a small change here. अगर मैंने x का वैल्यू 0 ले लिया, let's execute this again. Let's say x value is 0 and y value is say 20. So z is equal to x and y. अब यहाँ पे 0 है, 0 मतलब तो false होता है, so there is AND ऑपरेशन और पहला वाला false है, तो इसको देखने की जरूरत है क्या अपने को, to take a decision? एंड में यदि एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर क्या आएगा?
फॉल्स ही आएगा। तो दूसरे वाले को देखने की जरूरत है क्या, वो ट्रू हो या फॉल्स हो। सो व्हाट इज बीइंग स्टोर्ड हियर इज 0। तो z की वैल्यू जो आउटपुट में अब आपको आएगी वो आएगी 0। तो उसको सेकंड वाले को वो चेक भी नहीं करेगा। So now let me execute this and you will see the result as 0. Is that fine everyone? अब इसी में एंड की जगह यदि हम और कर दें, लेट्स चेंज दिस टू और, तो 0 और 20, 0 और 20. Now the first one is false and the operator is false, और ऑपरेटर। तो पहला वाला तो फॉल्स है, तो बिना दूसरे वाले को देखे आप डिसीजन ले सकते हो क्या और ऑपरेटर में? नो। तो दूसरे वाले को भी देखना पड़ेगा। सो दिस इज 20, दैट मीन्स ट्रू। सो 20 विल बी असाइन टू जेड, क्योंकि आप वहां तक पहुंचे। तो अब जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा 20। सो द रिजल्ट हियर विल बी 20। ओके, सो दिस मच इज क्लियर एवरीवन। तो अब इसी चीज को अगर समझो x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 20, तो z इज इक्वल टू x और y सपोज आई एम टेकिंग। तो यहाँ पे 10 और 20 आ रहा है, तो 10 वैल्यू जो है वो z को चली जाएगी, राइट क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रू है, तो पीछे दे जाने की जरूरत नहीं है, अपना डिसीजन यहीं पे हो जाएगा। तो इस केस में z की वैल्यू कितनी आएगी आउटपुट में? व्हाट इज द आउटपुट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन दिस केस? 10। समझ में आ रहा है कि नहीं, आगे जाना है कि नहीं जाना है, वो डिसीजन इंपॉर्टेंट है। सो इफ इट इज द ऑपरेटर, बेस्ड ऑन द ऑपरेटर वी कैन डिसाइड वेदर वी हैव टू गो अहेड और नॉट। So you can see, sorry, I need to change this to 10. ठीक है, तो अभी सबको समझ में आ गया। Now you can play around with a bunch of combination. ऐसा कुछ कुछ करके देखोगे आप? What is the answer in this case? 10 ही आएगा, परफेक्ट। क्योंकि यहीं पे डिसीजन हो गया तो उसको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सो स्टिल द आंसर विल बी 10 ओनली। अगर ये जीरो होता, अगर ये जीरो होता तो आंसर क्या आता? तो 20 आता। नहीं, अभी 30 आया आंसर। क्यों? क्यों 30 आया? क्योंकि दिस इवेल्युएटेड टू ट्रू, बट वी हैड टू लुक फॉर द लास्ट वन, विदाउट दैट वी कैन नॉट टेक अ डिसीजन। तो इसलिए लास्ट वाले को देखना पड़ा अपने को। समझो, इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ मैं, इसको 20 और इसको 0 ले लेते हैं हम। तो अभी देखो, हाँ, इस केस में तो डिसीजन ऐसे नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, लेट मी टेक इट लाइक दिस, दोनों 0 0 है, दोनों 0 0 है, तो आंसर 0 ही आ गया। एंड ऑपरेटर में अपने को पता है 0 है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो रिजल्ट की वैल्यू 0 ही आएगी। समझ रहे हो? आगे जाना है कि नहीं जाना है वो डिसीजन आपको लेना है। समझ गए? सो लेट मी टेक इट एज 30 एंड 20। सो व्हाट इज द आउटपुट नाउ? अभी वल्लभ नहीं आंसर करेगा, दूसरे कोई आंसर करो प्लीज। प्राची, प्रणव, वैभव, गौरवी। प्राची इज सेइंग 10, व्हाट अबाउट अदर्स? गौरवी, प्रणव, क्या आंसर आएगा?
ये कंसेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया है, पहले तो ये क्वेश्चन है. Could you understand this concept? प्रणव, वैभव, प्रीति, कैन यू प्लीज कंफर्म ये समझ में आ रहा है कि नहीं? कंफ्यूजिंग है मैम. ओके, तो एक बार और क्लियर करूं. चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं. x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20 है सपोज. अभी एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर याद है क्या आपको? एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आता है. एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आंसर फॉल्स आएगा. ये याद है? दिस पार्ट इज क्लियर. वैसे ही और में क्या होता है, दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, फॉल्स ट्रू में ट्रू, ट्रू फॉल्स में भी ट्रू, और फॉल्स फॉल्स रहेगा तो फॉल्स. क्लियर है? यहाँ तक ओके है क्या, पहले ये बताओ. प्रीति, प्रणव, एवरीबडी, वैभव. ओके, सो अपने पास दो कंडीशंस दी हुई है और बीच में है एंड. अगर यहाँ पे फॉल्स है तो इसको बिना देखे आप मुझे आंसर बता सकते हो. एक पहला वाला फॉल्स है तो दूसरा वाला बिना देखे, क्योंकि एंड में एक भी फॉल्स आ गया तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा. तो इसको देखने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है, इसी पे डिसीजन हो जाएगा. सो दैट इज वाई अगर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 20 है, और अपन ने लिखा z इज इक्वल टू x एंड y, तो x की वैल्यू कितनी है, 0, मतलब फॉल्स. यहाँ मत देखो, सीधा ये असाइन कर दो तो आंसर क्या आ गया, 0. ये क्लियर है प्रणव? ओके, अब दूसरा केस, यहाँ पे ट्रू है एंड अब यहाँ मुझे पता नहीं क्या है. सो कैन आई टेक अ डिसीजन, आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स? पहला वाला तो ट्रू है लेकिन दूसरा वाला अभी तक मुझे पता नहीं है. नहीं, तो अगर ये ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा. करेक्ट है? सो दैट इज वाई इफ z इज इक्वल टू x एंड y, वेयर सपोज x वैल्यू इज 10, यहाँ पे वैल्यू 10 है, तो हम y को देखेंगे और y की वैल्यू z को असाइन होगी. अभी ये पार्ट क्लियर है क्या? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. अभी उसी में और में आ जाते हैं. सो x और y, अगर अगर यहाँ पे ट्रू है और समथिंग, देयर इज एन और ऑपरेटर, पहला वाला ट्रू है, तो बिना इसको देखे तुम मुझे रिजल्ट बता सकते हो. If the first one is true, without looking at the second one, can you tell me, yes, what is the result? आंसर क्या आएगा? ट्रू ही आएगा. सो विल गेट द रिजल्ट एज ट्रू. अब नेक्स्ट, ट्रू, पहला वाला यदि फॉल्स है, पहला वाला यदि फॉल्स है और बिना सेकेंड वाले को देखे आप डिसीजन ले सकते हो क्या, तो और के केस में? नो, तो सेकेंड वाला देखना पड़ेगा. सो दैट इज हाउ द डिसीजन मेकिंग इज डन. सो z इज इक्वल टू x और y. x की वैल्यू यदि 10 है तो ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है, तो वो एज इट इज यहाँ पे असाइन हो जाएगी. ये इसको डायरेक्टली असाइन हो जाएगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है. बट यदि x की वैल्यू 0 होगी और y, तो जो भी y होगा वो y z को असाइन होगा. नाउ टिल दिस पॉइंट इफ इट इज क्लियर, कैन यू प्लीज टाइप सी फॉर क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, तो अब मैं उसका भी कॉम्बिनेशन लेने जा रही थी.
So now what I was saying, z या फिर result is equal to x और y and z. So अगर यहाँ पे ट्रू आ गया तो ये सब देखने की जरूरत है क्या? तो यहीं पे सीधा सीधा x का वैल्यू रिजल्ट को असाइन हो जाएगा और ऑपरेटर है इसलिए. पर यदि ये फॉल्स होता, यहाँ पे फॉल्स होता, तो हम आते y पे. सो वी विल हैव अ लुक एट y. y की वैल्यू यदि ट्रू है, नहीं चलो y की वैल्यू पहले अपन फॉल्स लेते हैं. तो एंड ऑपरेटर z, एंड के लिए पहला वाला फॉल्स हो गया तो इसको देखने की जरूरत है क्या? नो no. तो सीधे सीधे ये वैल्यू रिजल्ट को असाइन हो जाएगी, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है. इज दैट क्लियर? बट अगर ये ट्रू होता तो हमें यहाँ देखना होता, तो ये यहाँ पे असाइन होता. अभी आया समझ में? एवरीबडी इज नाउ. तो ये तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करो खुद से. अभी समझ में आया ना कैसे लिखना है? सो दो तीन ऐसे कॉम्बिनेशन बना के खुद से ट्राई करो तो तुमको और अच्छे से समझ में आए. एंड को पहले ले लो और को पीछे ले लो और पहले खुद सॉल्व करके खुद डिसाइड करो क्या आउटपुट आ रहा है और बाद में फिर रन करके देखो. क्लियर है? दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी व्हाट शुड बी द आउटपुट. गॉट इट? फेयर इनफ एवरीवन? यहाँ तक ओके है तो सी फॉर क्लियर टाइप करो. ओके. नाउ कमिंग टू द बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हमने देखे थे. सो डेमो 7.5. सो बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए मुझे एक बताना था आपको. सपोज x इज इक्वल टू 10 है तो इसका बाइनरी आपको चाहिए. तो यहाँ पे b ऑफ 10. बाइनरी का एक मिनट था, मुझे याद नहीं हो रहा. बाइनरी ऑफ नंबर इन पाइथन. bin function. Yes. So there is a bin function straight away. तो 10 के बदले में वो उस दिन हम कुछ तो 27 या ऐसा कुछ नंबर लेके कर रहे थे काम. सो पाइथन डेमो 7.5. सो ये जीरो भी तो जस्ट इंडिकेट करने के लिए कि वो बाइनरी नंबर है. सो 1010. 27 का बाइनरी तो 1010 नहीं होता है. हाँ सॉरी, यहाँ 10 लिखा है मैंने. वही मैंने सोचा कुछ तो गलत आंसर है. So this is the binary equivalent of 27. So if you remember, we learned how to do the binary conversion, but that support is being provided by Python. Now, interesting part is Python also provides us with the octal and with hexadecimal options as well. So don't you think this is really interesting now? तो आप कोई भी नंबर है उसका बाइनरी चाहिए, ऑक्टल चाहिए, हेक्साडेसिमल चाहिए, सब मिल जाएगा. ये क्यों चाहिए हमको? या बहुत सारे एमसीक्यू में, बहुत सारे कंपनीज के टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट में ये क्वेश्चंस रहते हैं. ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट वे टू गेट द ऑक्टल नंबर और द बाइनरी इक्विवेलेंट, ऐसा कुछ क्वेश्चंस रहेगा. सो दिस पार्ट इज क्लियर एवरीवन? We can derive the binary of any number by using this technique. Okay, so once we are done with this, next. So binary तो मिल गया मुझे. अभी y.
is equal to suppose 33. Now we want print x and y. Print x or y. Print x or y. Print x so these are the different variations जो जो ऑपरेटर्स हमने देखे थे और सबसे पहले तो बेटर रहेगा कि हम उसका बाइनरी भी प्रिंट कर लें. So we have the binary equivalent of x and y, and based on that we can go for different operations. So you may see this is the binary equivalent of 27. ये 33 का है. 33 बोला ना मैंने. हाँ, तो वो सब उसका देखो सारे operations करके दिखाएगा. So this you can calculate and check whether the answer is correct or not. But we have already covered this part. So just wanted to give you a glimpse of the operators and how to use them in Python. So यहाँ तक सबको clear है? Everybody is fine with this? Okay. So that's all for today's session. We will stop here. कल हम नया topic start करेंगे, that is if else. Okay? That is called as branching, selection बोलते हैं. Fine? Okay. Chalo then. Bye bye everyone. Have a nice day and take care. So please attend the lab sessions that are being provided and also the aptitude sessions. Okay. And today is the last day for availing that offer. 5,000 discount वाले offer का आज last day है. ठीक है? चलो. Bye bye. Have a hello. Yes, I got a message from a student. C seminar is available for us. Yes, it is available for everybody, Pallav. You can attend it, no problem. 3rd अक्टूबर को जो है वही पूछ रहे हो ना पल्लव? ओके, चलो, बाय बाय.